Now, here I am trying to define the decimal, tenth and hundred. So, this is my 15th lecture. Decimal, notation, tenth, hundredth and thousands. That's very, very important. Notation, it is represented by the dot, but it is referred as point. Now, suppose this is 26.541. So be careful. The left hand side of decimal is always a whole number. That's very important. And because of that, ones and tens has been denoted on the first and the second digit as I have already done. But in the right hand side of the decimal, it is not referred as a number. It is referred as a digit. Suppose we can read as 26.541, but the first digit after decimal is the 10th, second digit is hundredth, and third is the thousandths. That is how it is denoted up to class 4. Now, I have written the left hand side of the decimal read as a whole number, and right hand side of the decimal is read as a digits. That's very, very important. 26.541. Just here, I have mentioned it. Now, all the fraction can be written as a decimal. All the fraction. For example, here I am giving the proper fraction. In a decimal, 1 is done for you. For example, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 2, all are proper fraction. And proper fraction means dividend upon divisor. Numerator, denominator, numerator is equivalent to dividend and denominator is equivalent to divisor. I'll just show you example. Let us consider case A, where fraction is equal to 1 by 2. अब इसमें क्या करना है? अब देखिए, this is the dividend divisor. I have written here 1 is a dividend and 2 is a divisor. Before, just see, in this case, dividend is equal to 1, divisor is equal to 2. So, place decimal after dividend 1 and quotation 0. ये आया तब करना है. अब देखिए, यहाँ पर write table of 2 because the divisor is 2. आप लिख लिए 2 से 5 तक. First is the divisor, second is the quotient and last one is the dividend. It is very important to note. अब देखिए, if you divide 1 by 2, so dividend should be more than divisor. Dividend should be more than divisor. So to make more dividend, what we have done? First, just say 2 zeros are 0. So 0 becomes quotient first. 0 right here, remainder is 1. क्या हो गया? Yes, just see. Sorry. यहाँ पर 1 है, 2 है. तो 2 डिविडेंड शुड बी मोर देन 2. मोर कब होगा? जब 0 होगा तब. तो 0 बार ले जाइए, यहाँ 0 लिखे, डिफरेंस 1 आ गया. Put decimal on the quotient and the dividend. And if you want to put 0 as many as after decimal, it has not going to affect the number. So एक 0 रख दिया, अब इसको डाउन कर दिया, 10 हो गया. Dividend 10 will be when divisor is quotient is equal to 5. तो quotient 5 रखिए, 10 रखिए, remainder 0. So what I have said that remainder should be 0, so the quotient becomes 0.5. अब इसको 0.5 नहीं पढ़ेंगे, 0.5. So this is a 0.5, and such you can say fraction is known as terminating decimal. But 1 by 2 is read as a half. It is also important. This can be read as a half, and this is a terminating because you cannot divide after the quotient 5 in this case.
अब देखिए यहाँ पर जो नाउ कंसीडर केस बी, फ्रैक्शन 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है। आई हैव डिविडेंड इज इक्वल टू 1, डिविजन इज इक्वल टू 3, आई हैव डन द सेम थिंग। Here I have written mathematical table of 3 starting from 0. This is very very important, 0 to dash dash dash. तो हमने क्या किया है, 3 is a divisor, जस्ट देखिए यहाँ डिविजर है, quotient we have to write here, this is a dividend. अब यहाँ देखिए 1 is also less than 3, तो टेबल में देखेंगे तो केवल 0 ही जो अमाउंट से 3 से 0 होगा, लेस होगा, तो इसलिए हमने 0 बार यहाँ पर ले गए, 0 कर दिया, -1 आ गया। अब देखिए आफ्टर दैट आई हैव प्लेस्ड डेसिमल इन क्वोशंट एज वेल एज डिविडेंड। अब इसके बाद 0 यहाँ लिखे, इसको डाउन करिए, 10 हो गया। अब 10 डिविडेंड कहाँ पे, यहाँ पर है। अब देखिए अब यहाँ पर 10 के लिए क्या होगा, 9 चूज करना पड़ेगा क्योंकि 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 किस पर है, 3 क्वोशंट है, तो हमने 3 क्वोशंट कर दिया। फिर देखिए 10 हो गया। अब इसी तरह करते जाएंगे, 3 ये रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, देयर इज नो एंड। दिस इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे जो है। देखिए हमने कहा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अब नेक्स्ट में आएंगे, हाँ देखिए नहीं यहाँ पे, तो अब इसके लिए बार क्या करते हैं, अब इसको लिखेंगे कि हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूं 1/3 इज इक्वल टू, देखिएगा 0.333 और इसको बार कर देंगे। बार मीन्स इट विल बी रिपीटेड एज मेनी टाइम्स एज यू रिक्वायर इट। इफ यू रिक्वायर 4 digit, write 4 times, 6 times. So this is called the non-terminating fraction. अब देखिए, अब यहाँ पर यही मैंने बता दिया, यहाँ पर कंपेयर कर दिया है। 1/4 you ask the student to divide 1/4, it is also known as 1/4. 2/3 non-terminating, hence bar on 6, 0.666 bar. Here 3/4 terminating yes, 4/5 terminating yes, और इसको बोलते हैं नंबर नेम। Once you say 1/4, 2/3, 3/4, 4/5, it is a number name. And here terminating yes, no, और terminating नहीं है तो लास्ट में आप 6 बार लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज यू वांट एनीवन 0.66, यहाँ भी बार कर सकते हैं। Because bar means it is going to be repeated as many times as you require it. अब देखिए, convert the following improper and mixed fraction into decimal. अब देखिए, अब ये improper fraction क्या है कि numerator is greater than denominator, और इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा। अब ये improper fraction 5/4 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर इसको भी मैं कर रहा हूँ डेसिमल में, कैसे होगा जो है। 5 is dividend, 4 is divisor, और यहाँ क्वोशंट रहेगा। अब एक टेबल मैंने लिख दिया डिविजर का जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5। अब देखिए, आप 1 बार ले जाइए, 1 आ गया। अब decimal, because this one is less than 4, so you have to make it more. For more you have to put decimal, 0 के ड्राइंग करिए, 10 हो गया। अब देखिए 10 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर 8 पर आएगा। 8 करेंगे तभी डिविजर शुड बी लेस देन डिविडेंड, और डिविडेंड शुड बी हायर देन डिविजर, मीनिंग इज द सेम। तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 0 उठाइए 5 टाइम्स, 1.25। ये आपको कन्वर्जन हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में, जबकि रिमाइंडर 0 हो गया, तो एक टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब देखिए, अब मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? देखिए 1:1/4 is equal to 1 plus 1/4, and this 1 means 1.00, because any number if you put decimal, after decimal you put as many 0 as possible, no problem, number is not going to be affected. Here 0.258, answer is same. So why I said
द मिक्स फ्रैक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसको पिक्टोग्राम में कैसे किया जाता है। 1/10 को अगर आपको दिखाना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए रेक्टेंगुलर लीजिए, 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 को शेडो करो तो 1/10 हो जाएगा। तो शेडेड पार्ट इज 1, टोटल पार्ट इज 10। ये डिविडेंड है, डिविजर है। अब डिवाइड करिए, देखिए 1 है डिविडेंड, 10 है डिविजर। अब टेबल यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका डिविजर है। अब 1 चूंकि 10 से छोटा है तो छोटा करने के लिए 0 बार ले जाना पड़ेगा। देखिए 0 बार, और 0 से 1 आ गया, फिर डेसिमल करके सिमिलर वे 0 यहाँ पे कर दिया, और फिर देख 10 बन जा 10 तो 1 चला गया, तो ये आपका 0.1 एंड दिस इज टर्मिनेटिंग। नेटिंग डेसिमल। अब इसको 1/10 बोलते हैं। फिर उसी तरह से 100, और इसको भी देखिए 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक शेडो पार्ट हो गया तो 1/100 हो गया। इसको 100th कहेंगे, और इसकी वैल्यू 0 कैसे होगा, यहाँ पर हमको डिवाइड कर दिया हूँ, आप चेक कर लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे किया। सिमिलर वे एज आई डन अर्लियर, हियर स्लाइटली डिफरेंट। एक बार 0 हो जाएगा तो 10 होगा, पॉइंट देन 100 होगा, तब जाके 1 होगा 0.01। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 10 है 0.1 नो 0, अगर 100 है तो 1 0 2 से कम, 1000 होगा तो 0.001, वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए ड्रा द पिक्चोग्राम एंड फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। अब इसको पिक्चोग्राम में बताना होगा, डेसिमल में बताना होगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हूँ, दिस इज 8/10। तो इस सबको जो है आपका कन्वर्ट करिए, ऐसे आ जाएगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, इसको भी करिए जैसे हमने यहाँ पर दिया है। एनी नंबर हैज ए डिनोमिनेटर ऑफ 1, सो 0.2 इज इक्वल टू 0.2/1। और इसको डेसिमल को इक्विवेलेंट डेसिमल बनाना पड़ेगा, तो एक डेसिमल है तो 0.0 कर दीजिए तो डेसिमल हट जाएगा, 2/10 हो जाएगा। सिमिलरली डू एंड पिक्टोग्राम बनाइए, 1000 इज इक्वल टू 0.001। जैसे हमने कहा है इसको प्रूफ करिए, जिससे कि 1 में अगर आप 1000 को भाग दीजिएगा तो कैसे होगा। आप जैसे मैंने पहले बताया उसे करिए। ड्रा द पिक्चोग्राम एंड द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 0.008। सो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, इसको भी करिए, और तब पिक्चोग्राम में सोल्यूशन में बता दिया ए है, दिस इज इक्वल टू दिस 8/100। और इसको क्या बना है, पिक्चोग्राम यहाँ पर बना है, 100 पार्ट्स में बना लिया, 8 वाला शेडो कर दिया, 8/10 हो गया। अब ये आपका कंक्लूजन मैं बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है। अब देखिए फ्रैक्शन 1/10 is equal to 0.1. This 1 is position is 10th. तो फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल 0.1 रीड। फर्स्ट डेसिमल का है, ये 10th है, 1/100 0.01। दिस इज द सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल 0.01 रीड। 1000 0.001, दिस इज थर्ड डिजिट after decimal, read a 0.001। अब इसका मैं समराइज कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए 26.6541 है, तो फर्स्ट डिजिट 1, सेकेंड डिजिट 2, होल नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। व्हेन यू गो राइट हैंड साइड, तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर राइट टू लेफ्ट, तो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इट इज रीड एज ए डिजिट नॉट एज ए नंबर। जैसे 26.541 रीड। थैंक यू वेरी मच।